record दबा दिया मैंने. So recording has started. Let me share the Google Search Console. Okay. Can you all see this? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay. Among the four of you, do any of you have any idea of Google Search Console? Any knowledge, prior knowledge about Google Search Console? Anyone? You can say no. सर अब बेसिकली आप किसी भी टॉपिक पे देख सकते हैं कि गूगल के ऊपर उसकी सर्चेस किस ईयर में कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी थी या कितनी ज्यादा थी या कितनी कम थी. Is it? Yeah. So Rahina, have you tried using Google Search Console before? No, sir, but I've seen like a lot, like Okay. people using it. Okay. So let's see. So this is basically the Google Search Console main dashboard. And Google Search Console is basically an application by Google itself. It's a free facility that Google gives to monitor your SEO performance of your website, performance, clicks, impressions, CTR, click-through rate. And this is the uh, this is the dashboard. You can see performance. It's showing in this graph the total search clicks according to dates, and then indexing. Do any of you have any idea of indexing? What is indexing? So basically, it's a way of registering your page on Google, indexing. And so we'll discuss that in detail too later. Experience, okay, enhancement. So let me show performance. We click on performance. This is the performance. Okay, so now this is showing that in the last 3 months, this particular website, which is my friend's website, it got 914 clicks, 40,000 impressions. The click-through rate is 2.3%, and the average position means ranking on Google, whether you're in the top 3, the top 5, the top 10. So, this website is struggling. They're on the 54th position average on keywords. So, this site is struggling. But anyways, if it was 2 or 3, that means it's doing well. But anyways, and now in the performance category, these are the performance page. These are the different categories. There's queries, there's pages, countries, devices, search appearance, and dates. And queries means the keywords that people are entering, and these are all long tail keywords. So you can see the top queries, and you can see their clicks and impressions. So Adobe Flash Player version 11.5 download offline installer. These got 15 clicks and these got 60 impressions. And you can also see the other queries over here, the other queries. You can see their clicks and impressions. Any questions up till now? Please don't be scared and don't be afraid of asking questions. If you have any questions, और आप उर्दू में भी पूछ सकते हैं. मैं अंग्रेजी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एक नाइजीरियन स्टूडेंट भी रिकॉर्डिंग सुनता है. इंडियंस भी 3 हैं, खैर वो तो हिंदी और उर्दू सिमिलर है, बट एक नाइजीरियन है तो उसके लिए मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ. अदरवाइज आप उर्दू में भी सवाल पूछ सकती हैं. तो एनी क्वेश्चंस, प्लीज डोंट फील Is it paid? है. Back, sorry, I'm back. Sorry, my internet got disconnected. Can you hear me?
आवाज आ Yes, sir, we can, sir. रही? Yeah, sorry, my internet Uh, got, yeah, sorry, got internet got So disconnected. we were asking ke Google Console, is it paid or is it free? It's free. It's a free service provided by Google. Is that understood? Yes, sir. Yeah, okay. So let me share again. Share the page again. Okay. आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? no, sir. Yes, sir, right. Yes, sir. ठीक है। आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं इस Sir, this website is just to check the progress of our website or हाँ बिल्कुल, आपकी वेबसाइट की जो एसईओ है ना, कि आप कितना रैंक कर रहे हैं, आपके क्लिक्स कितने हैं, आपके इंप्रेशंस कितने हैं, ये उसके लिए है। जैसे आप ये देखें कि ये बता रहा है ये टॉप क्वायरीज हैं जो कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, और उसके कितने क्लिक्स और इंप्रेशंस हैं। right. ये समझ आ गई सबको? Yes, sir. मरियम, आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay, good. Just give me 1 second, please. 1 second. Okay, I'm back. तो ये समझ आ गई सबको? ओके, अब पेजेस का मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ ये जो वेबसाइट की पेजेस नहीं होते इंडिविजुअल, ये वो पेजेस दिखा रहा है, और ये साथ बता रहा है कि कितने क्लिक्स और इंप्रेशंस हैं। तो जैसे ये वेबसाइट है technice.net, और इसका जो एक पेज है अबाउट ऑफिस 2010 लैंग्वेज पैक्स, उसके क्लिक्स 293 हैं और इसके इंप्रेशंस 5271 है। और ये इसने सॉर्ट किया हुआ हाईएस्ट ऊपर है, यानी जिन पेजेस के सबसे ज्यादा क्लिक्स और इंप्रेशंस हैं वो टॉप पे हैं, और बाकी जो है वो कम है, मतलब 293 से 104 है। तो ये जो इस साइट के पेजेस हैं उसके क्लिक्स और इंप्रेशंस शो कर रहा है। इस पे कोई सवाल प्लीज पूछे। प्रभाब, मरियम, रोहिना, कोई सवाल है? Sir, ये overall SEO बता रहा है. Can we as a blogger, how बिल्कुल। is it benefiting us? इट टेल्स यू कि आपके कौन से पेज पे कितने क्लिक्स और इंप्रेशंस हो रहे हैं, यानी कितने लोगों के सामने पेज आ रहा है। जब जब कोई क्वायरी, कोई कीवर्ड डालता है, तो उसमें कितने लोग कीवर्ड पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं। But if the metrics goes down, तो हाँ it doesn't really indicate कि blogging खराब है. It could really indicate कि SEO में generally कोई मसला है. क्या हाँ है? हाँ 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 हाँ, No one knows. हाँ, तो ये सर्च कंसोल का मकसद ही यही है कि आपको पता चल जाए कि आपकी एसईओ गिर रही है कि नहीं, और फिर आप अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को फिर डायग्नोस करें और फिर सोल्यूशन निकालें। Okay, sir. यानी अगर आपको Sir, पता, जी 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 sir, रुबा। can you check someone else website on this Google Console? कैन वी डू व्हाट? Can we check someone else website, some other website, like you are working in Acufix, I think, Acufix Cosmetics. हाँ, ये नहीं वो, So can वो जो एक्यूफिक्स का है वो, आई एम नॉट अलाउड टू यूज दैट बिकॉज वो ये no, मतलब कोई भी website हम randomly भी नहीं check नहीं कर नहीं सकते हैं, जैसे नहीं 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 नहीं, वो आप एसईओ टूल पे कर सकते हैं रैंडमली। गूगल सर्च कंसोल में आपको एक ही वेबसाइट, या आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, 2 3, बट वो जो वेबसाइट का एडमिन है उसको परमिशन देना पड़ता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो नॉर्मली लोग अपनी ही वेबसाइट्स एक दो या वो गूगल सर्च कंसोल पर रजिस्टर करते हैं। यानी ये एसईओ टूल की तरह नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट की एंटर करके एसईओ कर लें, वो एसईओ टूल में ऑप्शन होता है। समझ आ गई? रुबाब, क्लियर है? yes sir. रोहिना और मरियम, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क, घबराएं मत पूछने से। रोहिना एंड मरियम, एनी क्वेश्चन? Okay, sir. मरियम, No, आपका sir. कोई? No, मरियम, sir, no हाँ, question.
ठीक है। अब ये तो ये टॉप पेजेस दिखा दिया है कि जी इन पेजेस के क्लिक्स और इम्प्रेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ये फिर आप कंट्री वाइज भी देख सकते हैं कि किन कंट्री के लोगों के सबसे ज्यादा क्लिक्स और इम्प्रेशंस हैं, ठीक है। जैसे इसके इंडिया में सबसे ज्यादा है, फिर इजिप्ट, फिर इंडोनेशिया, कि किस क्लिक्स इम्प्रेशंस ज्यादा है। फिर डिवाइसेस पे है कि डेस्कटॉप है या मोबाइल है या टैबलेट है। और सर्च अपीयरेंस भी बताता है कि अ, ये भी बताता है, डेट्स भी बता देता है कि किस डेट में कितने क्लिक्स और इम्प्रेशंस आए हैं, ठीक है। फिर हम यूआरएल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। ये मैं वहां जाके करना पड़ेगा। Okay, तो ये मैं पहले technice.net तक खोल दूं। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसकी वेबसाइट पहले खोलूं। आवाज आ रही है? यस सर। Okay, ठीक है। ये मैंने एक पेज देख लिया, अब इसको मैं इस पे डालूंगा। या सो अब ये उसको रिट्रीव कर रहा है। करता हूँ। ये एक्चुअली मेरी लाइट चली गई है, तो मैं मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, तो स्लो हो गया। ये एक स्पेसिफिक जो पेज होता है ना वेबसाइट का, उसका वो कर रहा है। एंड ये कहता है पेज इंडेक्स नहीं है, यानी वो इन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया इसमें। तो मैं एक और ट्राई करता हूँ इनका। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप एक इंडिविजुअल पेज का आप कर सकते हैं। इसका भी इंडेक्सिंग नहीं हुई भी, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट जरा वीक है, इनकी इंडेक्सिंग नहीं हुई भी, तो ये नहीं हो सकता। अभी इंडेक्सिंग का भी एक क्वेश्चन है। आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है? जी सर। यस हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब ये शो कर रहा है कि ये इनकी वेबसाइट सही मेंटेन नहीं हो रही, कि इनके सिर्फ 174 पेजेस इंडेक्स्ड हैं, 3000 नहीं है। यानी गूगल ने इनकी पेजेस रजिस्टर नहीं किए, ठीक है ना। और ये बेसिकली आपको थ्रू गूगल सर्च कंसोल एक तरीका होता है, आप अपना साइट मैप रजिस्टर करते हैं। दीज आर वैसे एसईओ टॉपिक्स हैं, कंटेंट राइटर के लिए जरूरी नहीं है कि उसको पता हो कि इंडेक्सिंग क्यों होती है और कैसे करते हैं। यू डोंट रियली हैव टू नो दैट एज अ राइटर। वो एक एसईओ स्पेशलिस्ट को पता होना चाहिए कि इंडेक्स कैसे करते हैं, बट इंडेक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि गूगल में आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो इनके 174 सिर्फ रजिस्टर्ड है, 3000 नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ इसने पेजेस रीजन बताए हुए हैं कि वाई पेजेस आर इंडेक्स्ड, ठीक है ना। कैनोनिकल टैग नहीं है, 404 नहीं है। दीज आर एसईओ टॉपिक्स। ये कंटेंट राइटर को जरूरी नहीं है ये चीजें पता हो, ये बस मगर कंटेंट राइटर को गूगल सर्च कंसोल की कुछ चीजें आनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू नो द a good content writer should have some knowledge of Google Search Console। और मैं वो आपको यू नो वो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ये है कि वीडियो पेजेस कौन सी इंडेक्स नहीं है, साइट मैप्स रिमूवल। अब एक्सपीरियंस में पेज एक्सपीरियंस
ये भी कंटेंट राइटिंग के लिए सच जरूरी नहीं है। ठीक है, ये लिंक्स या सो एक लिंक्स का भी ऑप्शन होता है इसमें। ये आपको बताता है कि इंटरनल लिंक्स क्या हैं। कोई मुझे बता सकता है, मैंने पिछले क्लासेस लेक्चर से भी इंटरनल लिंक्स पढ़ाया था, कोई बता सकता है इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? When you link your one blog to another blog, एक ही निश के अंदर जब आप एक दूसरे के नहीं लिंकिंग नहीं करते नहीं हैं so that नहीं, one एक एक वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस होते हैं ना, सब पेजेस। yeah जब आप एक सब पेज को दूसरे से लिंक करते हो, मतलब आप एक लिंक डाल देते हो, तो दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। क्या आप yeah एक जैसे एक ही पेज पे कलेक्शन से आप लोगों को बेसिक कलेक्शन से न्यू अराइवल्स पे, न्यू हाँ हाँ अराइवल्स हाँ से हाँ फिर हाँ हाँ ब्राइडल हाँ कलेक्शन से, हाँ, हाँ बिल्कुल इस बिल्कुल तरह। ऐसे। रुबाब और मरियम, आपको समझ आई है बात? यस यस सर। रुबाब आपको आई है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। तो ये दिस शोज के टॉप कितने लिंक्ड पेजेस हैं, ये शो कर रहा है कि इस अबाउट पेज से आगे 187 इंटरनल लिंक्स जा रहे हैं, और ये प्राइवेसी कितने हैं। ठीक है, और टॉप लिंक पेजेस कितने हैं, ये टॉप लिंक पेजेस हैं जिनके सबसे ज्यादा लिंक्स निकल रहे हैं। टॉप लिंकिंग साइट्स, ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं। ठीक है ना, कि रेडिट, फाइंड योर सपोर्ट, क्योरा, क्यूबर्ट, ये एक्सटर्नल साइट्स हैं जहां से ये भी लिंक दे रहे हैं, वो भी लिंक दे रहे हैं। ठीक है ना, और ये टॉप लिंकिंग टेक्स्ट है, यानी एंकर टेक्स्ट जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो ये है। ये बात समझ आई आपको? ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं, ये इंटरनल लिंक्स हैं, और ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं। समझ आ गई? कोई मुझे बता यस सर। सकता है एक्सटर्नल लिंक्स Yes, क्या sir. होते हैं? सर एंकर Sir, क्या from other होता है? websites. जी जी, पहले रुबाब आप बता दें, फिर मरियम बताएं। रुबाब पहले आप बताएं। Sir, links from other websites. हाँ बिल्कुल, वो एक्सटर्नल होते हैं ना, और इंटरनल क्या होते हैं? The links from the same website, like from the same paid blogs. हाँ, एक पेज से दूसरा, यानी वेबसाइट में मुख्तलिफ पेजेस होते हैं ना, जी जी। वो इंटरनल होते हैं। मरियम अब आप बताएं, आपको क्या समझ आई है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स का? सर मरियम, इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो सेम वेबसाइट के सब पेजेस वगैरह ठीक है, और एक्सटर्नल? आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। और एक्सटर्नल? और एक्सटर्नल लिंक अगर अगर किसी और वेबसाइट से हम लिंक दे रहे हैं तो वो एक्सटर्नल होता है, लाइक अपनी वेबसाइट का नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप किसी और वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक मतलब गूगल सर्च कंसोल में और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बट एक कंटेंट राइटर को इतना ही पता होना चाहिए गूगल सर्च कंसोल का, जितने मैंने आपको चीजें बताई हैं। बाकी गूगल सर्च कंसोल में कौन से ऑप्शंस हैं, वो कैसे यूज होते हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक एसईओ स्पेशलिस्ट का काम है, वो आपका काम नहीं है एज ए राइटर। एक राइटर को कितना आना चाहिए गूगल सर्च कंसोल के कॉन्सेप्ट्स, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है ओके सर। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई है? फील फ्री, घबराए मत। नो सर। चलो चले, अब मैं आपको एसईओ टूल सेमरश का पेड, रोहिना आपके पास कोई पेड टूल्स थे, कोई आपके पास कोई इस वक्त है? ये सर है मेरे पास। कौन से एसईओ टूल्स हैं आपके पास? हाँ ठहरे। आप अभी लैपटॉप पे हैं या फोन पे हैं? सर फिलहाल तो फोन पे हूँ, लेकिन लैपटॉप पे जा सकती हैं आप? जी जी, जरा लैपटॉप पे मैंने जाएं आपको और एक दफा स्क्रीनशॉट भेजा हाँ, था जो मेरे पास जो भी टूल्स थे नहीं नहीं, आप उनमें ऐसे से कुछ करें। का तो एक्सेस मेरे पास है। हाँ, आपके पास सेल फोन पे भी उनका एक्सेस है? मेरी सेल फोन पे नहीं है, तो मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ लैपटॉप से। आप लैपटॉप से आए और जरा एसईओ टूल अपने खोलें। ठीक। वेलकम तैमूर।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ तैमूर, आपने गूगल सर्च कंसोल का मिस कर लिया। खैर वो तो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप जी सर। हाँ, अब हम गूगल सर्च कंसोल हमने कर ली है। अब हम पेड एसईओ टूल्स की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। जी सर। तो हाँ, तो वो मैं सेमरश का खोल रहा हूँ। वैसे रोहिना भी खोल रही हैं जो उनके पास टूल है। तो अ, एक सेकंड मुझे टाइम देना। मैं जरा खोल रहा हूँ उसको। जरा लॉग इन हो रहा हूँ इसमें। ये जरा सेमरश का मैं खोल रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो है बिकॉज आज मैं रोहिना, आप अभी हैं? जी सर हो गया रोहिना मैं है स्क्रीन शेयर करूँ अपनी? आप आ गई है लैपटॉप पे? जी सर मैं आ गई। हाँ, तो कौन सा सेमरश टूल आप कर रही है शेयर? मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपनी? हाँ, स्क्रीन शेयर करें जरा। हाँ रोहिना, मैंने आपको अलाउ कर दिया, आप जरा शेयर करें। रोहिना लगा रही हैं आप? रोहिना? ठीक है सर, सबको नजर आ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं आई अभी। जी हमें आ रही, मुझे आ रही है। आ रही? जी मुझे आ तो गई। नहीं आ रही। एक सेकंड, मुझे तो नहीं आ रही। सर आपको आ रही है? एक सेकंड। सर आपको स्क्रीन नजर आ रही है? एक सेकंड, मैं जरा इसको। रोहिना स्क्रीन, हाँ आ रही है। रोहिना आ रही है जी, आप खोलें। आप एसईओ टूल खोलें। ये सेमरश आ गया। सबको नजर आ रहा है सेमरश? यस सर। हाँ, इसमें आप रोहिना जरा इसमें आप डालें, कोई वेबसाइट डालें जो आप यूज करती रही हैं, उसका एनालाइज करते हैं। नहीं, उसमें उसमें हाँ, यहाँ से कॉपी करके उसको सेमरश में डालें। ओके, तो अब इसमें स्टूडेंट्स, एक तो अथॉरिटी स्कोर आ रहा है विच इज 23, विच इज नॉट बैड एक्चुअली। ऑर्गेनिक सर्च आ रहा है 13.8 थाउजेंड, ठीक है। और बैकलिंक्स आ रहे हैं, जरा नीचे करें रोहिना। हाँ, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, पेड कितनी है, और नीचे आए। और ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ रहे हैं, टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो जरा दिखाएं, उस पे आए टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे। नीचे 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 रोहिना, नीचे जरा टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड। हाँ हाँ, इधर। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये बेसिकली सेमरश पे टूल ने बताया है कि कीवर्ड सबसे ज्यादा लोग कौन से एंटर कर रहे हैं। इसमें जीन पी के वॉल्यूम 390, पाकिस्तानी क्लोथ्स, पूरा क्या है,
ये रोगिना जरा इसको क्लिक करें, जीम पीके के नीचे पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड्स, ठीक है। उसकी पोजीशन बता रहा है कि ये किस पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, ये बता रहा है नंबर 2 है, वॉल्यूम 1.9K है। सीपीसी जो है और ट्रैफिक, ये गूगल एड्स के टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको जरूरत नहीं है पता करने की। आप बस यूजर इंटेंट देख लें। ये कमर्शियल है, पहला नेविगेशनल है, एन फॉर नेविगेशनल, दूसरा है सी फॉर कमर्शियल, ठीक है। तो अ, ये है। सर नेविगेशनल और कमर्शियल क्या है? ये आपने वो वीडियोस देखी है मेरी सर्च इंटेंट पे? ये सर मैंने तो सारी देखी हैं। सर्च इंटेंट में वो 4 टाइप्स के सर्च इंटेंट नहीं हमने पढ़े थे, जी जी कमर्शियल, जी जी याद आ गया। जी जी ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, ठीक है ना। जी याद तो आ ये गया। वो है, ये जी एन नेविगेशनल है, सी कमर्शियल है। तैमूर और मरियम, आपको समझ आ रही है बात की? यस सर। मरियम आपको आ रही है? रुबाब आपको आ रही है समझ? यस अगर सर। अगर नहीं आ रही तो यस बताएं। सर। चलो गुड, ठीक है। तो अब ये इसी तरह ये पाकिस्तानी क्लोज थर्ड जो है, रोगिना जरा इसको जरा एक्सपैंड करें। क्लोथिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान, नीचे वाला, इससे नीचे, क्लोथिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान, इसकी इंटेंट कमर्शियल है, पोजीशन 1 है गूगल रैंकिंग में, वॉल्यूम 720 है, और बाकी सीपीसी और वो छोड़े हैं, वो गूगल एड्स के टर्म्स है, ठीक है। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट, ठीक है ना। तो ये कुछ मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों ने कुछ सेकंड्स बाद उस पर फिर क्लिक करके फिर ज्वाइन करना है, ठीक है। समझ आ गई सबको? जी सर। क्योंकि इनका सर इनका अगर हमने जिम की हाँ जी रोहिना। सर अगर हमने जिम की वेबसाइट खोली है तो अगर ये हमें जिम बता रहे हैं तो ठीक है, कीवर्ड ये वाला ठीक है। हाँ, अगर ये हमें बताते जिम पाकिस्तानी क्लोथ या फिर लॉन जिम पाकिस्तानी they आर्टिकल्स या actually these are the keywords which people are actually writing. तो फिर ये यहाँ से जिम में जा रहे हैं ऐसे तो हर चीज में। हाँ, आप समझ रही, बेसिकली उधर जाएं, उधर उसको एक्सपैंड करें। हाँ, तो लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस। 1900 लोगों ने गूगल पे लिखा है पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड्स, एंटर किए, ठीक है। और इन 1900 लोग ने जब देखा कि जीम नंबर 2 पे है लिस्ट पे, उन्होंने क्लिक किया है जीम की वेबसाइट पे। ये मतलब दिस इज द होल प्रोसेस। अब समझ आई है रोहिना? अच्छा अच्छा जी ठीक हो गया। ठीक है। बाकी तैमूर, रुबाब और मरियम, आपको इस बात समझ आई है? डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? जी जी सर, आगे समझ। रुबाब और मरियम, आपको समझ आई है? यस मरियम, रुबाब, यस सर। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कुछ मिनट्स में ये बंद हो जाएगा। जब बंद होगा आपने बस कुछ सेकंड्स बाद फिर वही क्लिक, फिर एंटर हो जाना, ठीक है। तो इसी तरह ये बाकी जो हैं उनका भी इन्होंने इंटेंट, पोजीशन, वॉल्यूम और सीपीसी बताया है। आप रोहिना नीचे जाएं। हाँ, ये आप कीवर्ड्स बाय इंटेंट, उसने बता दिया आपको कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स 27% है, नेविगेशनल 4 है, कमर्शियल 57% है, और ट्रांजैक्शनल 10% है। आप में से ऐसा कोई है जिसको ये नहीं पता कि इंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल? कोई है जिसको इनका नहीं समझ, इन कॉन्सेप्ट्स का? घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई है? रुबाब और मरियम, आपको इसको पता है इंटेंट का और इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल? यस सर। चलो गुड। सर, ये टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जिसमें मतलब इंफॉर्मेशन हो, नेविगेशन हाँ, मींस वे इंटेंट हो। यानी कीवर्ड्स की क्या टाइप है? वो इंफॉर्मेशनल टाइप कीवर्ड्स हैं, नेविगेशनल है, कमर्शियल है कि ट्रांजैक्शन है? बल्कि तैमूर आप इनको समझाएं, इन चारों में फर्क समझा सकते हैं तैमूर आप? क्या रोहिना आप समझा दें इन्हें? या तैमूर आप बोलने लगे थे फिर चुप हो गए?
सर मेरे ख्याल में मुझे इतना क्लियर अभी नहीं है, नहीं है, बेसिक चलिए नॉलेज है मुझे। आपको मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है ना। रोहिना आप बताएं, आप तो सर मैं मतलब, बताऊं, हाँ मरियम आप बताएं, बताएं आप। इंफॉर्मेशनल इंटेंट ये होता है कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप इंफॉर्मेशनल इंटेंट यूज करते हैं। नेविगेशन में कोई वेबसाइट वगैरह हो तो ठीक है, वो यूज की जाती ठीक है। है। और कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल में एक जो है वो लाइक आपको, ये मुझे इतना खास याद नहीं है तो आप बता दें। यहाँ कमर्शियल ट्रांजैक्शनल कोई और बताएगा? तो ट्रांजैक्शनल्स तो वो होते हैं ना जो आपके ये अमेजोन वगैरह और इन पे होते हैं, जिनसे आपने बाय करना होता है, मतलब प्रोडक्ट। बेसिकली जब आप, वो कीवर्ड्स होते हैं कमर्शियल जब, में, हाँ हाँ रोहिना आप बताएं। सर कमर्शियल में जब हम लोग इस तरह के कीवर्ड्स यूज करते हैं ना कि बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड है, हाईएस्ट रैंकिंग है, आई थिंक ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना ये आपके हाँ कमर्शियल जिसमें उसमें आते हैं। कंपैरिजन होता है, बिल्कुल। कंपैरिजन वाले। और ट्रांजैक्शनल में क्या होंगे रोहिना? मे बी अफोर्डेबिलिटी जिसमें बता, पता नहीं। नहीं, जहाँ ट्रांजैक्शनल पर में, आपको जाकर डायरेक्टली बाय करना हो। हाँ मरियम, हाँ बिल्कुल मरियम सही कह रही है, ये बात समझ आ गई। जब जब आपने फैसला कर लिया है कि मैंने